ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಸುಲಿಗೆ ತಪ್ಪದು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಸುಲಿಗೆ ತಪ್ಪದು, ಸಿಡಿದೆದ್ದರೆ ಜಯ ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಜಗತ್ ಪಂಡಿತ ಜಗದ್ಗುರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಷೇಧ ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ರೋಡ್ ಬಾನಿ ಓಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಿನಾಂಕ 8/4/2025 ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಬಾಣಿ ಓಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಏನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಗರಿಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೇಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ, ಪಕ್ಷದ್ರೋಹಿ, ಹಿಂದೂ ದ್ರೋಹಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ದ್ರೋಹಿಯಾದಂತ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಏನು ಅಂದಿನ ದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಧರ್ಮಗುರು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ತೋರುವಂತ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ಗೆ ಏನದ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸದಂತ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನಾಗರಿಕ ಅದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಗುರಿಕಾರ್ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನೀನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬೈದಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀನು ಶಪಥ ಮಾಡು. ಏನಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುಟವನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಹಭಾಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿ, ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಕೀಟನಾಶಕ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದಿ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಮ್ಮು ಇಮ್ಮು ತಾಕತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ನೀನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೂಡ ಇದೀದಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ನೀನೇನದ ಮಾತಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೇನದ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದಿ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಅದ. ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಇವನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಏನದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ಗೆ ಏನದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಿನಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಳಕತ್ತಿದಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀನು ಮಾತಾಡುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಿನಗೇನದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಿನ್ಗೇನದ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೇಳಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನದ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನದಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನವಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಳ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮನವಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಕ್ಕಿಂತ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಳ ಅವರು ಸಣ್ಣವರಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನದ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂನೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳದಾರ. ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ನೀನೇನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಏನದ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವನ್ನಾಗಿನೇ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿನ್ನಂತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಏನದ ನಾವು ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ನೀ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆದಿಂದ ಇರುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ MR ಗುರಿಕಾರ್, ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿಜಯಪುರ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बहुत अफसोस का दिन है कि हमारे इस पूरे साउथ इंडिया के लिए भी अफसोस का दिन है कि साउथ इंडिया में फूट डालने के लिए और मुसलमानों में गैर मुस्लिमों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कुछ लोग जो है धर्म का नाम ले रहे हैं और कुछ लोग जो है पार्टियों का नाम ले रहे हैं और ले करके मुसलमानों में और गैर मुस्लिम लोगों में बांट रहे हैं और झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कुछ बातें मुसलमान समाज को भी बोलना चाह रहा हूं। जो हमारा समाज है खुद का, उसमें जो है बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करना चाह रहा हूं। और कुछ जो है लिंगायत समाज के लोग हैं, उनसे भी मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए कि इसमें दूसरे और कोई समाज के लोग जो है इन्वॉल्व नहीं है। तो लिंगायत समाज का एक फर्द है। अभी जहां तक मुझे मालूम है, मैं तो एक मुसलमान आलिम हूँ, मौलाना हूँ, और जो है मैंने जो लिंगायत समाज के बारे में मालूम किया है तो मुझे ये मालूम हुआ है कि लिंगायत समाज जो है वो मनुवादियों के खिलाफ में खड़ा हुआ था। लिंगायत समाज जो है वो मनुवादी के खिलाफ में खड़ा हुआ था और पूरे लोगों को मूल निवासी बनाने के लिए खड़ा हुआ था। ये ऐसा एक लिंगायत समाज था। और हम लोग जो है बहुत सारे लिंगायत समाज के स्वामियों की बातें सुने हैं कि जो बहुत अच्छी बात करते हैं और उनके कई मैं भाषणों के अंदर में गया हूं तो उनकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लिंगायत समाज का एक आदमी किसी भी दूसरे एक समाज के एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो एक ऐसी जात और शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसको जो है पूरी दुनिया के हर मजहब के लोग जो है बड़ा मानते हैं। कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है, न यहूद हैं, न जो है ईसाई हैं, न क्रिश्चियन हैं, न ज्यूज हैं, न जो है दूसरे कोई और मजहब के, सब लोग जो है मोहम्मद पैगंबर साहब को बड़ा मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। और कितने भी लिंगायत समाज के जो स्वामी लोग हैं उनके बयानों में सुनाओ कि मोहम्मद पैगंबर साहब हिंग हेलता रही है, मोहम्मद पैगंबर साहब हिंग हेलता रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो लोग अपने बयानों में बोलते हैं। लेकिन अब उसी लिंगायत समाज का एक आदमी जो है अगर इस तरह की बातें कर रहा है
तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या लिंगायत समाज में इस तरह की भी चीजें हैं क्या। ये हमको जो है बहुत तकलीफ दे रही है बात। हम लोग अभी तक लिंगायत समाज को अच्छा ही समझ रहे थे और आइंदा भी हम उसको अच्छा ही समझेंगे, इसलिए कि उनके जो मुखंड लोग हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, स्वामी लोग हैं, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और लोगों में जोड़ की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने की बात करते हैं, जुड़कर रहने की बात करते हैं। लेकिन जो है लिंगायत समाज का ही एक आदमी जो इस वक्त में किसी एक पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है और फिर जो है पहले जो है वो किसी पार्टी में रह करके मुसलमानों के दरमियान में आना जाना, जहाँ मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, टोपी डालना, ये सारी बातें वो कर चुका है। अब जो है वही आदमी अपनी दाल गलाने के लिए और अपना जो है सब बढ़ाने के लिए जो है किसी भी मजहब के बड़े आदमी को जो है बुरा भला कहता है। तो क्या ये गलत है या नहीं है? मैं लिंगायत समाज के बड़े लोगों से पूछना चाह रहा हूं। अगर लिंगायत समाज के लोग ये समझते हैं कि ये गलत है, तो आप खुद जो है अपने आदमी का बहिष्कार करो। आप खुद अपने आदमी का बहिष्कार करो और आप बोलो कि ये जो है आदमी हमारा लिंगायत समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप खुद जो है ये आदमी का बहिष्कार करो। अगर हमारे मुसलमानों में अगर कोई आदमी जो है गलत काम कर रहा है तो हम भी उसका बहिष्कार करेंगे। ये जो है किसी भी मजहब के बड़े आदमी को गलत बोलना ये गलत ही है। किसी भी मजहब के बड़े आदमी को गलत बोलना ये गलत ही होता है। तो अगर कोई बड़ा आदमी, ऐसे वैसे लोग बोलते हैं वो बात अलग है, गली में फिरने वाले, लेकिन जो है कोई बड़े पद पे रहने वाला आदमी अगर गलत बात बोल रहा है तो ये गलत है। तो मैं लिंगायत समाज से ये दरखास्त कर रहा हूँ। दूसरी जो दरखास्त है वो हमारे मुस्लिम जमात, मुस्लिम तंजीमों से और मुस्लिम जमात के रहनुमाओं रहबरों से मेरी दरखास्त है कि हमारे यहाँ पे जो है बिलखुसूस मैं जो है हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ, तो हमारे इलाके के अंदर में बहुत सारे मजहबी रहनुमा हैं। तो मजहबी रहनुमाओं का काम ये होता है कि मजहबी रहनुमा जो है अपने मजहब के बारे में, अपने मजहब के बड़े लोगों के बारे में दूसरे मजहब वालों को बताना। अब जैसे जो है हमारे बड़े जो है पैगंबर साहब हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो पैगंबर साहब के बारे में जो है एक एक समाज को जोड़ करके बताना ये मजहब के हमारे मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं का काम है। अभी तक हमें ये काम नहीं किए हैं कि उन मजहबी जो जैसे लिंगायत समाज के लोग हैं, तो इनके लिंगायत समाज के लोगों को जोड़ना और उनको बताना कि पैगंबर साहब क्या इनकलाबी काम करें और ये जो बुरे बातें बताई जा रही हैं वो कितनी गलत हैं। ये काम करना जो है वो हमारे मजहब के जो मजहबी रहनुमा हैं उनका ही काम है। तो जो गलत फहमी है उसे दूर कराना। हमें जो है कम्युनिकेशन गैप और हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी ये इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, तो ये बयान के जरिए से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप और बढ़ता है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ना नहीं है बल्कि जो है और लोगों को जोड़ना है। तो अभी पहली फुर्सत में मैं जो है मजहबी रहनुमाओं से ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे बीजापुर के और अतराफ के और बल्कि मैं पूरे इंडिया के लोगों से ये कहूंगा कि आप जो है गैर मुस्लिम लोगों को बुला करके उनसे गेट टूगेदर टाइप में उनके साथ में जो है मजलिसें करके, मीटिंगें करके पैगंबर साहब कौन थे ये बताना जरूरी है। क्योंकि हमारे ही लोगों को मालूम नहीं है पैगंबर साहब क्या थे, कौन थे करके। किसी भी एक रैंडमली किसी मुसलमान को जाकर के बोलो कि पैगंबर साहब के बारे में जरा बोल भाई 10 मिनट कर बोले तो उन्हें नहीं बोल सकता है, इतनी जो है लाइल्मी है। तो अब दूसरे मजहब के लोगों को क्या मालूम रहेगा बेचारों को कि हमारे पैगंबर साहब कौन थे। तो इसलिए ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान जो है अपने पैगंबर साहब के बारे में पूरे तौर से अच्छी तरह से उनको जोड़ जोड़ करके बताना। तो आज ये हमारे यहाँ एक वाकया हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होना, इसके लिए मुसलमान जो मजहबी रहनुमा है उनके ऊपर में ये जिम्मेदारी आयद हो रही है कि कल से ही मीटिंगें शुरू करो। कल से हर मजहब के लोगों को बुलाओ कि भाई जो है लिंगायत समाज के लोगों को बुलाओ, फिर जो है एससी के लोगों को बुलाओ, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुलाओ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बुलाओ, और जो है लमानी समाज के लोगों को बुलाओ, मराठा लोगों को बुलाओ। तो सबको बुला करके उनके सामने जो है ये सारी बातें बोलो कि पैगंबर साहब कौन थे, उनके आने की वजह से दुनिया में क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या इनकलाब पैदा हुआ, ये सारी बातें बताना। तो बताए तो जो है उनकी समझ में ये सारी चीजें आती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो है हमारे जो सियासी रहनुमा हैं तो उनसे भी एक दरखास्त करना चाह रहा हूं कि आप अल्लाह के वास्ते ये मामले में जो पैगंबर साहब का मामला है इसमें सियासत मत करो।
पैगंबर साहब के मामले में सियासत मत करो, वरना तुम्हारा सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं साफ बोल रहा हूं, ये मामला फाइनल मामला है। पैगंबर साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुसलमान के सियासी रहनुमाओं से कह रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग तो उन्हें जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं पैगंबर कौन है करके। तो पैगंबर साहब के बारे में खिलवाड़ नहीं होना। आप जो है अपना सियासी काम निकालने के लिए जो है इसे आगे पीछे करने का काम मत करो। अल्लाह के लिए इस मसले को सॉर्ट आउट करो, जितना जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कैसे भी हो जाए इस मसले को हल करो। आइंदा से ये काम हमारे इलाके में नहीं होना। आइंदा से इस तरह का कोई आदमी बदजुबानी ये पूरे इलाके के अंदर में नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि कोई मुसलमान इसके लिए अगर नहीं खड़ा हुआ तो सबके ऊपर में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूं, ताकि यहां बैठ करके इसलिए बोल रहा हूं, ये बात तो वहां अंदर बोलने की थी, लेकिन मैं यहाँ मीडिया में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां मेरी बात सुनते नहीं है। तो यहाँ जो है मैं सबसे बोल रहा हूं, पूरे मुसलमान बीजापुर के सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करो। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। जितने जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करो। अगर नहीं हल करेंगे तो अल्लाह की नाराजगी इतनी बढ़ेगी कि पूरा बीजापुर अजाब की लपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए जो है सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, आप जो है अपने बड़े लोगों से बात करो। अगर जो है वो नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करो। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे, आपके बड़े लोगों से बात करो कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी ऐसा ऐसा बोला है, उसका हल करके दो। अगर नहीं हल कर रहे हैं तो पार्टी छोड़ो। नबी से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जी। नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारी पार्टी? नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी आस्तियां? नबी से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर जो है तुम्हारे बड़े अगर नहीं मान रहे हैं तो जो है फौरन पार्टी से रिजाइन करो और छोड़ दो पार्टी। अल्लाह तुमको बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगा। और ये भी मैं समझ रहा हूं, लोगों से मैंने बातचीत की, ग्राउंड लेवल मैंने बात किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जो ये मसले को हल करेगा वही जो है हमारा बड़ा आदमी है। मैं लोगों से बात किया, अभी गली गली गया, जाकर के फिर करके ग्राउंड लेवल सब देखा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इस मसले को हल करेगा वही हमारा बड़ा आदमी है। क्योंकि हम परेशान हैं तो हमारे मसले का हल करने वाला ही बड़ा आदमी है। अगर हल नहीं कर रहे तो फिर कहीं के बड़े भाई, तो वो क्या है, मौलाना भी हो या एक जो है कोई सियासी आदमी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मौलाना ही रहते या एक कोई तंजीम हो या एक कोई जमात हो या एक कोई बहुत बड़े मौलाना हो, वो कुछ भी हो। अगर जो है आप हमारा मसला हल कर रहे हैं तो आप बड़े हैं हमारे लिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप हमारा मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे पास। हम अपना मसला हम हल कर लेंगे। जब तुम्हें हमारा अपना मसला हल ही नहीं कर रहे हमारा, तो फिर हम आपको क्यों बड़ा माने भाई? खत्म ही होगी बात। तो ये हमारी जो है दरखास्त है। और मैं नौजवानों से एक गुजारिश करने जा रहा हूं, अल्लाह के लिए आप जल्दी कदम उठाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सब्र रखो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते बनाएंगे। आप हजरत जो है जुड़ करके रहो। और जो है हमारे नौजवानों का मामला भी ये है कि भाई आओ रैली निकालेंगे तो 10,000 20,000 रैलियां जो है लोग जमा होते हैं, लेकिन जो है यही काम कि अपने गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में जाकर के पैगंबर साहब के बारे में बोलो, तो उसके लिए हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। मस्जिदों को भरो नमाजियों से, उसके लिए तैयार नहीं होते। रमजान में जो है हमारी मस्जिदें खाली रहीं, रमजान के बाद कोई मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है। और जो है कितने सूद में, बड्डी में, जिना में लोग मुलविस हैं, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो ये गलत कामों को नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है इस तरह की चीजें हमारे दरमियान में पैदा होंगी। तो इसलिए ये तीनों चीजें मैंने आपसे कही हैं। तो अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह हमारे इलाके को जो है अमन और शांति का इलाका बनाए, और यहाँ पर किसी किस्म का झगड़ा और फसाद होने से, जो फसादी लोग चाह रहे हैं उस तरह होने से हमारे इलाके को अल्लाह ताला बचाए। हर किस्म के फितनों से जो है हिंदू मुसलमान जितने भी जो है हमारे भाई लोग हैं, ये सारे के सारे इंसान जो है हर तरह के जो है फसाद से महफूज रहे और अमन शांति का माहौल रहे। हम अल्लाह से ये प्रे कर रहे हैं।